بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ آج جو ناول ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے خوشیاں لوٹ آئی ہیں، جو لکھا ہے وریال خان نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والے تمام اقساط تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ناول آپ کو کیسا لگا یہ بھی آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ فرمائش ضرور کیجیے گا، ہم آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ آج کی جو کہ ناول ہے اس کی سٹوری ہے سیکنڈ میرج بیس پر یہ کہانی ہے جس میں ایج ڈفرینس ہے۔ اچھی سٹوری ہے، رومانٹک ہے، ہیپی اینڈنگ ہے، ضرور سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ شکریہ۔ دسمبر کا مہینہ بھی عجیب ہے، خاموشی میں نئے بے کیف سے دن اور ٹھٹرتی سرد راتیں، اداسی میں گزری بکھری ہوئی شامیں دل میں یادوں کے نشتر چبھوتی ہیں، آنسوؤں سے دامن بھر دیتی ہیں۔ آنکھوں میں گزرے کارواں کی گرد ٹھہر سی جاتی ہے۔ یہ گرد جب دھول اڑاتی ہے تو بہتے ماہ و سال کے سارے منظر دھندلا دیتی ہے۔ کوئی صورت گر، کوئی چارہ گر، کوئی سیما گر ثابت نہیں ہوتا۔ محبت درد کی صورت آنکھوں کے رستے دل میں اترتی چلی آتی ہے اور وجود میں لہو کی مانند سرسرانے لگتی ہے۔ ایسے میں بیتے دنوں کی گزری تلخ یادیں بھیانک خواب کی طرح کربناک عذاب کی صورت آہستہ آہستہ ذہن کھوکھلا کرتی جاتی ہیں۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے اپنے دونوں کن پٹیاں سہلائیں۔ آنسو ایک تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ گزرے لمحوں کا ہر ایک پل، ایک ایک یاد اسے اندر تک بھگو رہی تھی۔ خود پر لگا بے سبب الزام وہ کیسے بھول سکتی تھی، کیسے بھول جاتی ان اٹھائے دنوں اور ماہ و سال کو۔ رات کی خاموشی پرسکون تنہائی میں جب ہر ذی روح نیند کے آغوش میں ڈوبی ہر چیز سے بیگانہ اور بے خبر مزے لوٹ رہے تھے، ایسے میں انشال احسان شاہ بیتے دنوں کا ایک ایک منظر اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا منال آپی، میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھاؤ گی تو کبھی وہ سب نہ ہونے دیتی۔ آپی ایک بار مجھ سے کہہ تو دیا ہوتا، اعتبار تو کیا ہوتا، تمہاری دنیا سے بہت دور چلی جاتی، اپنا سایہ بھی نہ پڑنے دیتی تم پر۔ وہ کیوں کیا آپی؟ تم نے یہ سب مجھے عمر بھر کا روک دے کر خود ایسی جگہ بسیرا کر لیا جہاں سے واپس پلٹنا اختیار میں نہیں۔ اتنی مہلت تو دی ہوتی کہ میں اپنی صفائی پیش کرتی۔ تم نے تو پل بھر میں سب سلسلے ناطے توڑ ڈالے، مجھے سب کی نظروں میں معتبر ٹھہرا دیا۔ کیا قصور تھا میرا؟ کیوں اتنی بڑی سزا دے دی مجھے؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ بے آواز رو دی۔ دیان شاہ نے ایک نظر خود سے لڑتی اس پاگل لڑکی پر ڈالی، وال کلاک پر ٹائم دیکھا، رات کے 3:30 بج رہے تھے اور یہ بے وقوف انتظار میں اپنی ننھی سی جان پر بے وجہ ظلم کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انتظار طویل ہو کر بے یقینی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوتا چلا جائے گا اور وہ اس گہرے سمندر میں ڈوب کر ابھرتے سورج کی مانند پھر سے بے یقینی کے سمندر میں گرتی چلی جائے گی۔ لیکن انشال احسان شاہ اس گناہ کی تلافی چاہ رہی تھی جو شاید اس سے سرزد ہوا ہی نہ تھا، اس سے پہلے کہ اس کے آنسو اسے پگھلا کر موم کر دیتے۔ جس خاموشی سے وہ گھر میں داخل ہوا، اسی خاموشی سے دبے قدموں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مسجد میں اللہ اکبر کی صدا گونجی تو اس نے بے بسی سے گھڑیال کی جانب دیکھا جو 4 بجا رہی تھی۔ یکدم ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، ایک مانوس سی خوشبو اس کے چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس خوشبو کو لاکھوں میں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر وہیں سے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرے کے بیچوں بیچ دیان شاہ کو پورے انہماک سے نماز پڑھتے دیکھ کر پرسکون انداز میں کمرے میں داخل ہوئی، بیڈ کے ایک سرے سے ٹک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دیان نے نماز ختم کرتے ہی جائے نماز طے کی اور صوفے کی پشت پر ڈال دی۔ اسے بیڈ کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ہر روز کی طرح کا دہرایا فقرہ ایک بار پھر دہرایا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ اس نے ایک نظر انشال پر ڈالی، پھر پاس بے خبر سوئی ایمان کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہے کھانے میں؟
हर बार तो वो सहूलत से इनकार कर देता था, मगर आज ना जाने क्यों पूछ बैठा कि इस सवाल पर इंशाल चौंक गई। जिस बात से खुद लाइलम थी, इस बारे में इसे क्या बताती? पता नहीं, वो होले से बोली। दियान ने बेयकीनी से इसे देखा। इस तरह के जवाब की वो तवक्का भी नहीं कर सकता था। हर बार की तरह आज भी इसका जी चाहा मना कर दे, मगर ना जाने कैसे अल्फाज मुंह से फिसल गए और वो पूछ बैठा। और अब जबकि वो सोई हुई ईमान का चेहरा उंगलियों के पोरों से छू कर महसूस कर रहा था। इसकी बात सुनकर एकदम बेड से उठा और इसके बिल्कुल मुकाबिलान खड़ा हुआ। क्या मतलब? पता नहीं, वो पूछ रहा था और इंशाल सर झुकाए बेचैनी से उंगलियां चटखाती और दांतों से लब कुचलती रही। जवाब होता तो देती। तुमने खाना खाया? कोई जवाब ना पाकर इसने सवाल किया। इंशाल ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? भूख नहीं थी मुझे, दानिस्ता झूठ बोला। अब वो उसे क्या बताती कि वो तो कई दिन से भूखी थी। शाह हाउस के तज़लील और हतक आमेज़ रवैये ने इसके कदम जकड़ दिए थे। वो तो कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। खाना क्या खाक खाती। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम हर चीज़ से बेखबर हो जाओ। दियान ने बेखबरी में चोट की तो आंखें बेख्तियार चौंकी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। आई एम सॉरी इंशाल। दियान को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। आगे ही वो अजियत में थी। इसने इसे और दुखी कर दिया था। मैं खाना लाती हूँ आपके लिए, इंशाल कहते साथ ही पलटी, लेकिन दियान ने मना कर दिया। नहीं इंशाल, मुझे भूख नहीं थी, बस ऐसे ही पूछ लिया था। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी है, अब कौन सा टाइम है खाने का। दियान अपनायत से बोला तो चुपचाप बेड पर आ गई। शाह हाउस के बड़े से हाल नुमा कमरे में इस वक्त सभी मौजूद थे। खुशगवार मूड में नाश्ते से मुकम्मल तौर पर इंसाफ किया जा रहा था। आगा जान, फायका बेगम, ऐसा हसन शाह, सामिया और दयान नाश्ते के साथ साथ खुश गप्पों में मसरूफ़ थे। एकदम चाय की तरफ जाता दयान शाह का हाथ छिटका। सभी इस वक्त नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे और अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ भी। किसी एक को भी इंशाल की गैर मौजूदगी का ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ था, जैसे वो इस शाह हाउस का फर्द ही ना हो। लेकिन इस पल ध्यान शाह को इसकी गैर मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हुआ था। हाथ में पकड़ा कप टेबल पर रखा और चेयर घसीटता हुआ उठ खड़ा हुआ। क्या बात है ध्यान, तुमने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? इसे यूं उठता देखकर फायका ने हैरत से पूछा। आप लोग नाश्ता करें, मैं अभी आता हूँ मामा। फायका को फिक्रमंदी से अपनी तरफ देखता पाकर वो इत्मीनान से कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इंशाल, इसने पुकारा। वो जो ईमान को नहलाने के बाद अब चेंज करवाने में मसरूफ़ थी। ध्यान की पुकार पर फ़ौरन बेड से उतरी। तब तक वो भी इस तक पहुंच चुका था। तुम्हें क्या नाश्ते के लिए इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा? इंशाल ने बस एक नज़र ध्यान पर डाली, फिर झुका ली। मुझे भूख नहीं है मिस इंशाल। आप शायद शाह हाउस के रवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जब आप जानती हैं कि चाहे भूख हो या ना हो, शाह हाउस के मक्खियों को नाश्ते की टेबल पर हर सूरत मौजूद होना ज़रूरी है। फिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? ध्यान शाह का लहजा तंज से भरपूर और हकीकत पर मबनी था। अब वो इसे क्या बताती कि वो तो इस घर की खुशियों, रीत और रवाजों को कायम रखना चाहती थी, मगर शाह हाउस के लोग इसे तोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। मुझे वाकई में भूख नहीं है ध्यान। अभी मुझे ईमान के लिए दूध भी गर्म करना है। तंग करेगी ये मुझे? आप जाकर नाश्ता करें, मैं बाद में कर लूँगी, इसने जवाब पेश किया। कोई तंग नहीं करेगी, मैं रज़िया से कह देता हूँ, वो कर देती है दूध गर्म। तुम बस चलो, अब तो सब तकरीबन नाश्ता कर ही चुके होंगे। अब की बार इसने कदर नरम लहजे में कहा। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे भूख नहीं है अभी। वो बिल्कुल रो देने को थी। शाह हाउस के किसी भी फर्द का सामना करने का कम अज़ कम इसमें हौसला ना था। कहाँ से लाती इतनी हिम्मत? कैसे जमा करती हौसला? वो तो मिनाल के साथ इसी दिन मर गई थी, जिस दिन बेमकसद इल्ज़ाम लगा था इस पर। शाह हाउस वालों ने इससे इसकी अपनी नज़रों में गिरा दिया था, मर तो वो भी उसी दिन गई थी। इंशाल, तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हें उठाकर नाश्ते की टेबल तक लाऊं, शराफत से चलो मेरे साथ। मुझसे से कहता हुआ इसकी जानिब बढ़ा तो इसे मजबूरन साथ चलना पड़ा। जानती थी ध्यान शाह के गुस्से को। वो सिर्फ कहता नहीं था, अमल भी करता था। इसके इसी गुस्से ने तो इसकी जान जाती थी। इन दोनों को इकट्ठे नाश्ते की टेबल की जानिब बढ़ता देखकर
मुंह की तरफ जाता फायका बेगम का निवाला वहीं रुक गया। नागवारी से प्लेट मेज पर पटकी और चेयर घसीटती उठ खड़ी हुई। फायका की तकलीद में सामिया ने भी नाश्ता वहीं छोड़ दिया, जबकि डबल रोटी पर जैम लगाते हसन शाह ने सिर्फ एक गुस्से भरी नज़र इंशाल पर डाली, फिर खामोशी से बाहर निकल गए। ध्यान क्यों आई है यहाँ? सामिया खौनखार नजरें इंशाल पर गाड़ते हुए गुस्से से बोली, मैं लाया हूँ चाची, इसे जो कहना है मुझसे कहें। ध्यान गुस्से से भवें उचकाता आगे बढ़ा और सामिया और फायका बेगम के मुकाबिल आन खड़ा हुआ। बहुत हैरान हूँ मैं तुम पर ध्यान शाह, सब कुछ जानते बूझते भी तुम इसकी साइड ले रहे हो। घर उजाड़ा है इसने, तुम्हारा डाका डाला है तुम्हारी खुशियों पर, इसके बावजूद भी तुम इसके साथ हो। फायका ने भी इसे लताड़ा तो वापस से बाहर हो गया। मेरी खुशियों पर किसी ने डाका नहीं डाला मम्मा, और ना ही मेरा घर उजड़ा है। मेरे नसीब में मेरे मालिक ने जो कुछ लिखा था मुझे वो मिला, और मैं अपने मालिक की रज़ा में राज़ी हूँ। और बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आप पर। सामिया चाची, बेटी है ये आपकी, आपका अपना खून है, आपको तो कम से कम बेएतबार नहीं करना चाहिए था। वह फायका बेगम से होता हुआ सामिया चाची की तरफ आया था। कोई अपनी बेटी के साथ भी इस तरह से कर सकता है? अपनी सगी औलाद के साथ इस तरह का सलूक रवा रख सकता है? वो बेपनाह शौक में था और इसी लिहाज से इसे गुस्सा भी बेतरह आ रहा था। ऐसी होती हैं बेटियाँ। ध्यान शाह अपनी बहन को दुख देने वाली, इनका घर उजाड़ने वाली। अरे इसकी वजह से तो मिनाल छिन गई हमसे। शाह हाउस का सुख चैन खो दिया इसने। मेरा बस चले तो मैं इसे अपने हाथों से जिंदा दफन कर दूं, लेकिन मजबूर हूँ। पता नहीं कैसे बाहिम्मत लोग थे जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। काश मैं भी इतना हौसला पैदा कर सकती अपने अंदर। सामिया चाची के लहजे में गुस्से के साथ साथ दुनिया जहाँ की लाचारी और मजबूरी थी, इस कदर बेबसी पर खुद ब खुद आंखों से आंसू रवां थे। फायका ने सहारा देती अंदर ले गई। अब कमरे में सिर्फ 3 नफूस बाकी रह गए थे। आगा जान जो बस खामोशी से सब सुने जा रहे थे, कुछ कहने का हौसला कहाँ से लाते, और वो भी इनके सामने जो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। टेबल के करीब सर झुकाए इंशाल शाह, जो कुर्सी तक आने की हिम्मत भी नहीं कर पाई थी। इस कदर तस्लील और हताकामेज रवैये पर आंसू बेख्तियार हो गए। काश ये सब सुनने से पहले वह खुद अपने हाथों से दफन कर देती खुद को। इसलिए तो कतरा रही थी, रोक रही थी खुद को यहाँ आने से। ध्यान शाह के सामने शाह हाउस के मक्खियों का रवैया जाहिर करके इन्हें मज़ीद तकलीफ़ों के बोझ तले दबाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप सब कुछ सहे चली जा रही थी। लेकिन वो बेखबर नहीं था। मनाल की मौत के बाद हवेली वालों ने जिस तरह पैंतरा बदला, अपने लफ्ज़ और रवैयों से इस बुरी तरह से टॉर्चर किया था इंशाल को, इससे कुछ भी पोशीदा ना था। गुस्सा तो इसे आगा जान पर भी सख्त था। किस कदर खामोशी इख्तियार कर ली थी उन्होंने। आगा जान, देख रहे हैं आप इन सब का रवैया मेरे सामने, ये सूरत हाल है। पीछे तो आप लोग जीना हराम कर देते होंगे इसका। मुझे तो आप पर हैरत हो रही है आगा जान। सब कुछ आपकी नज़रों के सामने हो रहा है और आप खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। ध्यान ने बुरी तरह झंझोड़ा, मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। वो सिर्फ इतना कह पाए, सिवाय सर झुकाने के और कोई चारा भी तो ना था। ध्यान तो गोया इनकी बात सुनकर ही भड़क उठा। तो फिर ठीक है आगा जान, एक फ़ैसला आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में किया था, अब एक फ़ैसला मैं करूँगा, और आप जानते हैं कि मेरे फ़ैसले अटल होते हैं। कह दीजिएगा सबसे, या तो अपना रवैया ठीक कर लें या फ़ैसला सुनने को तैयार रहें। हो सकता है आप सबको मेरे फ़ैसले से बहुत दुख पहुँचे, लेकिन शायद इंशाल की बेहतरी के लिए यही मुनासिब है कि मैं जल्द अज जल्द किसी नतीजे पर पहुँच जाऊँ। मुझे वह फ़ैसला करने पर मजबूर मत करें आगा जान, जो मैं करना नहीं चाहता। पूरे यकीन, एतमाद, अज़्म इस्तक़लाल से भरपूर अटल लहजे में वो इन्हें वार्न करता उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बाहर निकल गया। पीछे रह जाने वाली दोनों हस्तियाँ ध्यान शाह के इस फैसले पर पूरी जान से काँप गई थीं। शुक्र है शाहजी, आप आ गए हैं। मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था। शाम 7 बजे के करीब वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ, फजल-दीन को इंतहाई परेशानी की हालत में टहलते देखकर वो ठिठका। क्या बात है फजल काका, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ध्यान ने इसके चेहरे पर फैले फिक्रमंदी के आसार देखते हुए पूछा। शाहजी, इंशाल बीबी की तबीयत सख्त ख़राब है, अंदर बुखार में तप रही हैं। फजल-दीन ने बताया तो तेज़ी से हाथ में पकड़ा शॉपर सोफे पर फेंका और इन्हें अपने पीछे आने का कहकर तेज़ी से कमरे की जानिब भागा।
ध्यान को कमरे में दाखिल होते देखकर ठंडे पानी की पट्टियां करती रजिया तेजी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ध्यान ने आगे बढ़कर कंबल हटाया। बेड पर तकरीबन नीम बेहोशी की हालत में कंबल अपने गिर्द लपेटे वो लेटी थी। इसने पेशानी चेक की तो एकदम करंट खाकर पीछे हटा। पूरा जिस्म बुखार की तपिश में जल रहा था। फजल काका, कब से बुखार है इसे, और आप मुझे फ़ोन करके बता नहीं सकते थे? वो फजल दीन पर चिल्लाया। मैं तो काफ़ी देर से आपका नंबर मिला रहा था, लेकिन वो मुसलसल बंद था। उन्होंने डरते डरते वजाहत दी। जानते थे अपने शाहजी के गुस्से को। मैं अगर बिजी था तो घर में तो मौजूद थे ना सारे, आप इन्हें नहीं बता सकते थे? इंशाल को नीम गनूदगी की हालत में देखकर वो फिर से धाड़ा। मैं गई थी जी बताने, लेकिन बीबी जी ने डांट कर वापस भेज दिया कि हमारा इंशाल बीबी से कोई ताल्लुक़ नहीं। पहले तो इंशाल बीबी ने खुद ही मना कर दिया कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन अब तो ये बुखार में तप रही हैं। मैंने ठंडी पट्टियां भी दे रखी माथे पर, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए मजबूरन आपको फ़ोन करना पड़ा। लेकिन अब के रज़िया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सारी सूरत हाल से आगाह किया तो ध्यान का जी चाहा नीचे जाए और पूछे, शाह हाउस के मकीनों से इतने बेहिस कब से हो गए? वो लोग जिसकी ज़रा सी चोट पर जान निकलने लगती थी, आज इसे इतनी तकलीफ़ में देख कर भी इनकी जानें सलामत थी। जिसकी तकलीफ़ से निकली हल्की सी कराह भी शाह हाउस के दरो दीवार हिलाकर रख देती थी। आज इसकी सिसकियाँ, इसके आंसू किसी को पिघला नहीं पाए थे। शायद उन्होंने अपने दिल इस कदर मुल्ता कर लिए थे कि इस पर किसी चीज़ का असर नहीं होने वाला था। फजल काका ड्राइवर से कहें जल्दी से गाड़ी निकाले, और रजिया तुम ईमान को उठाओ और मेरी गाड़ी में बैठो फ़ौरन। दोनों को हिदायत देने के बाद वो जल्दी से इंशाल पर झुका, इसके नीम जान वजूद को बाजों में भरा और गाड़ी में डाल दिया। अब्दुल, इंशाल को लेकर जल्दी अस्पताल पहुंचो, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। शाह हाउस का पुराना ड्राइवर जो हर वक्त अलर्ट रहता था, इस वक्त भी ध्यान शाह की हिदायत पर जल्दी से इसने गाड़ी रिवर्स की और जन से भगा ले गया। अब्दुल के जाने के बाद वो टाइम ज़ाया किए बगैर दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। चंद ज़रूरी सामान बैग में ठूंसा, जिप बंद की और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। ड्राइंग रूम के बीचों बीच कुछ पल रुक कर एक नज़र अपनी चारों जानिब दौड़ाई। ठीक है शाह हाउस वालों, ऐसे तो ऐसे ही सही। पोर्च में खड़ी सिया करोला में सामान रखा, अगली तरफ का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा और गाड़ी अस्पताल वाले रास्ते पर डाल दी। यावर यार, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, सब ठीक है ना? अपने फैमिली डॉक्टर यावर को इमरजेंसी से बाहर आता देखकर वो इसकी जानिब लपका और तशवीश भरे अंदाज में पूछा, सब ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बुखार तो वाकई बहुत तेज़ था, लेकिन इंजेक्शन के साथ साथ मैंने दवा भी दे दी है, अब बेहतर है पहले से। इसके कंधे पर हाथ धरते हुए बहुत मुतमईन अंदाज में इसे सूरत हाल से आगाह किया। मैं मिल लूँ जाके? इसने पूछा। हाँ देख लो, लेकिन अभी वो दवाओं के ज़ेर असर हैं, चंद घंटों तक असर रहेगा। वैसे अगर तुम चाहो तो घर ले जा सकते हो, डॉक्टर यावर ने हिदायत देते वो रूम की जानिब बढ़ गया। हॉस्पिटल के गेट के बाहर इस वक्त सभी मौजूद थे। ध्यान शाह ने डॉक्टर से मुकम्मल तौर पर हिदायत लेने के बाद इंशाल को फ्रंट सीट पर बिठाया, सीट बेल्ट बांधी। फिर रजिया की गोद से ईमान को लेने के बाद फजल दीन की तरफ आया। फजल काका, सब चेक कर लिया है ना? कुछ रह तो नहीं गया? नहीं शाह जी, वो सर झुकाए अफसरदा लहजे में बोले। यार ये मुंह क्यों लटका लिए तुम सब ने? बारी बारी सबके अफसरदा तो परेशान चेहरों पर नजर डालते हुए पूछा, आप क्यों जा रहे हैं छोटे शाह जी? बीबी ने पूछा। क्या जवाब देंगे? तुम लोगों को किसी के सामने भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं, समझ आई? सब कुछ मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। बिलफर्ज अगर पूछ भी लिया तो कह देना इंशाल के साथ तो ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया उन्होंने। ध्यान शाह को भी हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। शाह हाउस में वो अब इस वक्त कदम रखेगा जब वो अपनी खुदगर्जी और संगदिली छोड़कर इंशाल ध्यान शाह के लिए दिल में गुंजाइश पैदा कर सकेंगे, वरना सारी ज़िंदगी भूल जाएं कि कोई ध्यान शाह भी इनके शाह हाउस में बसता था। फैसला तो बहरहाल वो कर चुका था। शाह हाउस के मकीनों की खुदगर्जी ने इसे इस कदर संगदिल कर दिया कि फैसला करने में लम्हा भी ज़ाया ना किया। अगर कर देता तो शायद सारी उम्र पछताता, और वो पछतावों को उम्र भर का रोक देकर सज़ा की सूली पर चढ़ना नहीं चाहता था। आजकल शाह हाउस में अजीब तरह की खामोशी और सन्नाटा था।
एहसान शाह और हसन शाह हस्ब मामूल ऑफिस में थे। रज़िया किचन में और फजलदीन लॉन में लगे फूलों की काट छांट में मसरूफ़। बाकी मुलाजमिन भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ रूटीन की ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे थे। फायका ध्यान नज़र नहीं आया। इतने दिनों से इंशाल को लेकर हॉस्पिटल गया था। 3 दिन तो हो गए, अभी तक आया नहीं। पता करो क्या मसला है, कहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब तो नहीं हो गई। सामिया ने फायका बेगम की जानिब देखते हुए तशवीश भरे अंदाज में पूछा। आखिर माँ थी, कब तक अपने जिगरे के टुकड़े से कट कर रहती। लाख कोशिश की, खुद पर जब्त ना कर सकी। इतना तो जानती थी कि खराबी तबीयत के बायस ध्यान इसे हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन इस दौरान एक बार भी घर नहीं लौटा। यही बात इन्हें परेशान कर रही थी। वाकई सामिया, अब तो मुझे भी तशवीश होने लगी है। 3 दिन में एक बार भी घर का चक्कर नहीं लगाया इसने। इंशाल की तबीयत जैसी भी है, कम अज़ कम इतला तो कर देते हैं। हमें ऊपर से ईमान को भी साथ ले गया है। पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का। सामिया के साथ साथ वो भी इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान थी। अपने गलत रवैये की वजह से दिल के नेहा खानों में खौफ अलग कुंडल मारे बैठा था। फायका, तुम अफजल काकू को बुलाकर पूछो, हो सकता है इन्हें कुछ पता हो। मुझे लगता है ध्यान इन्हें भी साथ लेकर गया था। अगर नहीं पता होता तो ज़रूर बताते। फिर भी बुलवा कर पूछती हूँ फजल काका। वो इन आवाज़ पर देने लगी। फजलदीन पहली आवाज़ पर सब काम छोड़कर दौड़ते हुए आए। जी बीबी जी, आपने बुलाया? नहायत मोहतिम अंदाज में बोले। ये बताएं फजल काका, ध्यान जब इंशाल को लेकर अस्पताल गया था, आप साथ थे इनके? फायका ने पूछा तो इनके चेहरे का रंग फाक हो गया। खौफ ने पूरे चेहरे का अहाता कर लिया। दोनों ने बैक वक्त इस कैफियत को नोट किया। जी बीबी जी, मैं साथ था, खौफ से कांपती धीमी आवाज़ में बोले। तो फायका बेगम का पारा हाई हो गया। ये बात आप अब बता रहे हैं फजल काका? क्या आप साथ थे? कौन से हॉस्पिटल में हैं वो लोग? उन्होंने इंतहाई गुस्से से इन्हें देखते हुए पूछा। वो हॉस्पिटल में नहीं हैं। सर झुकाए आहिस्की से इंकशाफ किया। क्या मतलब है इस बात का फजल काका? हॉस्पिटल में नहीं हैं तो कहाँ हैं? सामिया पहली बार से मुखातिब हुई। वो खौफ से अलग फटा जा रहा था। मुझे नहीं पता बीबी जी, उन्होंने हमें हॉस्पिटल से घर भेज दिया था और खुद इंशाल बीबी को अपने साथ ले गए हैं। खबर थी या बम ब्लास्ट जो दोनों की समात पर फटा। फटी फटी आंखों से एक दूसरे को देखा। बगैर बताए कहाँ ले गया वो इंशाल को? और आपने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? इतना सब कुछ हो गया और आप अब बता रहे हैं? फायका बेगम इन पर बरस रही थी। उम्मीद नहीं थी कि ध्यान इतना बड़ा कदम उठाएगा। मुझे नहीं पता कि वो इन्हें कहाँ लेकर गए हैं, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे, कह देना शाह हाउस वालों ने से इंशाल से तो ताल्लुक़ तोड़ लिया उन्होंने। अब बेटे की शक्ल को भी तरसेंगे सारी उम्र। फजलदीन ने एक और धमाका किया तो वहीं सर थाम कर बैठ गई। ये क्या कर दिया था उन्होंने? अपने हाथों अपना आशियाना ही जला डाला। शोले उठने से पहले ही सब राख हो गया। सामिया तो सुनते ही बेहोश हो गई। एक बेटी को तो खो चुकी थी, दूसरी अपना हाथों खो दी। एक तवील सख्त कठिन मरहला और इंतहाई अजियतनाक मराहल से गुजर कर वो अब सवात की खूबसूरत वादी में दाखिल हुआ। न जाने कौन सा वक्त था। अपने चारों तरफ फैले घटाटोप घूप अंधेरों में वो अंदाज़ा ना कर सका। रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। 9:30 हो रहे थे। गाड़ी की लाइट्स ऑन की। एक नज़र इंशाल पर डाली जो अभी तक सीट की पुश से टेक लगाए होश व खुद से बेगाना नींद दराज थी। फिर दूसरी नज़र सोई हुई ईमान पर डाली जो 6 घंटे की तवील मुसाफत उसकी गोद में तय करके आई थी। ऐसे में ध्यान शाह के लिए ड्राइविंग करना कितना मुश्किल था ये सिर्फ वही जानता था। कई एक बार तो हादसा होते होते बचा। बड़ा सिंबल सिंबल कर चलना पड़ रहा था। ईमान को आहिस्ता से सीट पर डालने के बाद वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। जेब से चाबी निकाली, गेट का ताला खोलकर गाड़ी अंदर ले आया। इंशाल नीचे उतरो। ईमान को उठाए वो इसकी तरफ आया और इसे नीचे उतरने को कहा। इंशाल ने हल्के से आंखें खोली। अभी वो नींद में थी। ध्यान ने सहारे से इसे नीचे उतारा और कमरे तक लाया। बेड पर बिठाते हुए उसके बिल्कुल पास बेड पर बैठते हुए बोला, भूख लगी है इंशाल, कुछ लाऊं खाने को? नहीं जी, नहीं चाह रहा, नींद आ रही है, वो नकाहत से बोली। पता नहीं कैसी दवा थी, वो असर ही नहीं टूट रहा था। अच्छा 1 मिनट सोना नहीं, मैं अभी आया। इसकी फिर से बंद होती आंखों को देखकर वो तेज़ी से किचन की जानिब भागा। जल्दी से दूध गर्म किया और कमरे में आ गया।
یہ پیو، اس کے بعد بے شک سو جانا۔ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، اس طرح سے خالی پیٹ سونا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ خالی گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ پھر سے لیٹ گئی۔ دھیان نے کمبل اچھی طرح سے اس کے گرد ڈالنے کے بعد کچن کی جانب قدم بڑھائے۔ کچھ اپنی پیٹ پوجا بھی تو کرنا تھی۔ اسے اتنی طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد بھوک بری طرح سے چمک رہی تھی، اس لیے فوراً سے پیشتر وہ کچن میں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانے کا کچھ سامان کرتا، ایمان کے رونے سے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ انشال کی ڈسٹربنس کے خیال سے جلد ہی سے ایمان کو اٹھایا اور کچن ہی میں لے آیا۔ اسے بھی شاید بھوک لگ رہی تھی۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے؟ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو؟ کچن کی شیلف پر بالکل اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے اس نے کے گال پر بھرپور پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بدلے میں وہ صرف مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلو۔ پیپسی کا خالی پیک اسے تھماتے ہوئے لاڈ سے بولا، میں ابھی اپنی بیٹی کے لیے دودھ گرم کرتا ہوں، اس کے بعد اسے فیڈر میں ڈالیں گے، پھر اب میرا بیٹا اسے پیے گا، ٹھیک؟ خالی پیک ہاتھ میں آتے ہی وہ خوشی سے کھلکھلانے لگی۔ دھیان نے ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس کی بھوک کے خیال سے دودھ فریزر سے نکال کر گرم کیا، بیگ سے فیڈر نکالا۔ شکر ہے آتے ہیں میں وہ اسے ساتھ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ نیم گرم دودھ اس میں ڈالا اور اسے تھما دیا، جسے پیتے ہی وہ پھر سے سو گئی۔ اٹھا کر اسے بیڈ پر ڈالا، پھر دوبارہ سے اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگا۔ کھانے کے فوراً بعد گندے برتن سنک میں رکھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور دن بھر کی تھکان اتارنے کو اپنی بیٹی کے ساتھ نرم گرم بستر میں چلا آیا۔